नंबर 1 इंडिया न्यूज पर दिन भर की सबसे बड़ी खबरें देखिए सिर्फ रात 10 बजे शिवानी शर्मा के साथ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। नंबर 1 इंडिया न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की तरफ। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का ये भाषण यूपी में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इंडियन रोड कांग्रेस यानी IRC के 81वें अधिवेशन का है। शनिवार को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया कि 2024 तक उत्तर प्रदेश की सड़कों का बुनियादी ढांचा अमेरिका से बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका अमीर है इसलिए वहाँ सड़कें अच्छी नहीं है, बल्कि वहाँ सड़कें अच्छी हैं इसलिए अमेरिका अमीर है। भारत में बेहतर सड़कें तैयार हो रही हैं। भारत की $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर से पहले नंबर पर लाना है और उसके लिए सड़कों का निर्माण अति आवश्यक है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश 5वीं बार IRC की मेजबानी कर रहा है। इस अधिवेशन में सड़क निर्माण से जुड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के 2500 प्रतिनिधि भाग ले रहे। Remembering the word of American President John Kennedy, that American roads are not good because America is rich, but America is rich because American roads are good. The prosperity is coming from the road, and already I promised Yogi ji that before end of 24 we will make the infrastructure, the road infrastructure of the Uttar Pradesh equivalent to USA. It is only with your cooperation. We need to have more cooperation, coordination and communication between the stakeholders. We need transparent system, fast-track decision-making process, corruption-free system, quality, 101% commitment with the quality. We need to reduce the cost of construction and improve the quality of construction. We can make miracles. You have got the potential. But the problem is that the ownership. उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच चंपावत में भूस्खलन हुआ। इससे टनकपुर पिथौरागढ़ सड़क मार्ग बंद हो गया। रोड बंद होने से यातायात ठप हो गया और दोनों ओर लंबा जाम लग गया। भूस्खलन के बाद मलबा हटाने का काम जारी है। सड़क से मलबा हटते ही लोगों को जाम से निजात नहीं मिल पाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बार फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS और विनायक दामोदर सावरकर को निशाने पर लिया। उन्होंने कर्नाटक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि RSS ने अंग्रेजों की मदद की थी। सावरकर अंग्रेजों से स्टाइपेंड लिया करते थे। क्या ये सच है? से जुड़ रहे हैं। Last I recall that it was leaders of the Congress party who fought the British, who spent years in jail. Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Sardar Patel, all these people, they gave their lives fighting the British. In my study of history, in my understanding, the RSS was helping the British. In my understanding, Savarkar used to get a stipend from the British. These are historical facts, and these are not facts that the BJP can hide, right? The party that fought for independence and created a mass movement for independence, the party that helped bring the constitution, the party that brought the Green Revolution, that's the Congress party. And it's interesting that the BJP comes out with these comments. But if you look at the historical truth, the BJP was nowhere to be found in the freedom struggle. And the BJP is singularly dividing the nation and spreading hatred in this nation. Spreading hatred, dividing the nation are not things that help the nation. That is why we are doing the Bharat Jodo Yatra. And I would like to also say to you that it is not just me doing the Bharat Jodo Yatra. There are now lakhs and lakhs and lakhs of people who are doing the Bharat Jodo Yatra. So this is not just the expression of the Congress party, this is the expression of the people of India, and the people of India are tired of the type of politics that is being done,
They are tired of the price rise. They are tired of unemployment. And they are tired of the immense wealth that a few people are gaining. मुलायम सिंह यादव यानी नेताजी 40 साल से लंबा सियासी करियर और कद इतना ऊंचा कि दूसरे सियासी दल भी सलाम ठोके, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव पर एक बार जानलेवा हमला भी हुआ था। 4 मार्च 1984 ये वो तारीख थी जिस दिन नेताजी की जान बाल बाल बची। दरअसल मुलायम सिंह यादव अपनी सभा को मैनपुरी के कुर्रा में खत्म करके लौट रहे थे जब उन पर यह हमला हुआ। दो दिन हो गए दिल्ली और मुंबई में बारिश की छड़ी लगी है। दिल्ली ही नहीं एनसीआर में भी बारिश ने लोगों को घरों से निकलना मुश्किल कर दिया है। मुंबई में सड़कें पानी से भर गई हैं। ऐसा ही हाल दिल्ली और आसपास के इलाकों का है। उधर मुंबई में शुक्रवार को भारी बारिश के बीच भारतीय मौसम विभाग विज्ञान ने अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसका असर शहर और आसपास के जिलों ठाणे, पालघर और कोकण में अगले 2 दिनों रहने के आसार। बुलंदशहर जनपद में पिछले 3 दिनों से हो रही भारी बारिश को देखते हुए जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह के आदेश पर जनपद में कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यालयों में 10 और 11 अक्टूबर का अवकाश घोषित किया गया है। बीएसए बीके शर्मा ने बताया कि डीएम के आदेश पर कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यालय 10 और 11 अक्टूबर को बंद रहेंगे। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर में अक्टूबर माह में पिछले 2 दशक में ऐसी बारिश कभी नहीं हुई। लगातार 48 घंटों की रिमझिम बारिश में सड़कें लबालब उतर दी हैं। निचले स्थान पर बने मकानों में पानी तक भर गया है। बारिश से देवीपुरा, आनंद विहार, साठा, इस्लामाबाद आदि क्षेत्रों में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर समेत कई गांवों में बिजली सप्लाई प्रभावित है। पिछले 3 दिन से बिजली का आना जाना लगा हुआ है। बारिश के बाद रविवार को अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिक रामानंद पटेल ने बताया कि 3 दिनों में करीब 140 mm बारिश हुई है। 10 अक्टूबर तक ऐसा ही मौसम बना रहने की संभावना है।